गए तक पड़े गुरगुल होगा जब मैं कौन घर देख तो। मतलब आप दोनों एक ही कार में थे, अलग अलग कार में? अलग अलग। ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗ ನಗರ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಕೊಲೆಯಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ AIMIMನ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ. ಇದು ಬಹಳ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. बीजापुर में दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मारकर हलाक किया गया है। मकतूल का नाम हैदर अली नदाफ बताया गया है। हैदर अली की बीवी निशात नदाफ बीजापुर वार्ड नंबर 19 की कॉर्पोरेटर है। बताया जाता है कि यह आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में जीत हासिल करते हुए कॉर्पोरेटर बनी है। 6 तारीख की सुबह के तकरीबन 10 से 10:30 बजे यह मामला पेश आया है। इस साने है कि चश्मदीद गवाह खुद मकतूल हैदर अली की बीवी निशात हैं। निशात ने मीडिया से बात करते हुए इस मामले की तफसीलात पेश की हैं। एक साथ ही निकले भैया, उनके आगे मेरे पीछे थी कार, उन्होंने आगे जा रहे थे कार में, मैं पीछे थी। 21 मिनट का फर्क भैया, उन्होंने ऐसा गए मैं पीछे गई, गए तक पड़े गुरगुल होगा जब मैं कौन घर देख तो। मतलब आप दोनों एक ही कार में थे, अलग अलग कार में? अलग अलग। देखे देखे अकड़े भी नहीं उठा रहे भैया, पाँव पड़ रहा तो वो भी नहीं ले गए दवाई करने को। पुलिस हमको भी बोली, पुलिस भी नहीं ले गया, नहीं ले गए भैया उनको। नहीं अंदाजा टाइम कितना हुआ था? 10-20 21 मिनट भैया। मैं पीछे गई उनके, मुझे भी मैं उनके साथ ही जाने का था भैया। मैं थोड़ा देर करी को मैं गई करी। ನಾನು ನಿಶಾತ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ನದಾಫ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 19ರ ಸದಸ್ಯಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ಎಂದರೆ 6/5/2023 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10:17ರಿಂದ 10:23 ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮನೆಯಿಂದ ನಾನು BLDA ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕಾರು ಮುಂದೆ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಾನಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 100ರಿಂದ 150 ಮೀಟರ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ 2 ಕಾರ್ಗಳು ಬಂದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿನ ಮೋದಿ ಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಳಿದು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಅವರ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ರಿವಾಲ್ವರ್ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ. ಆಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ಹಾಗೆ ಇಳಿದು ಓಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು, ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಶೇಖ್ ಮೋದಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಅನ್ನು ಖಾದ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ತೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿದ. ಆಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇಳಿದು ಅವರಿಗೆ ರಿವಾಲ್ವರಿಂದ ಒತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರು, ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು. 8ರಿಂದ 10 ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು. ಸ್ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು. ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ हार्ट रेट इरलिಲ್ಲ. निशात ने अपने बयान में कुछ नाम गिनवाए हैं और बताया है कि ये मौका वारदात पर मौजूद थे. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರು ಯಾರೆಂದರೆ ಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಮೋದಿ, ಆದ ನಂತರ ಖಾದ್ರಿ, ಆಸಿಫುಲ್ಲಾ ಖಾದ್ರಿ, ಆಗ ವಾಜಿದ್ ಪೀರಾ ಹಾಗೂ ತನ್ವೀರ್ ಪೀರಾ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಬಳಿ ನಿಂತು ಹೊಡಿರಿ, ಅವನಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಜೀವಂತ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಹಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಪೂರ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಚೀರಾಡಿದರೂ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಯಾರೂ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಖಲಾಸಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದೆ. ನನ್ನ ಮೈದನಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಅವರು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಎತ್ತಲು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟರು. ಆದ ನಂತರ ನಾ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, SP ಸಾಹೇಬರು, ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಗರ ಸದಸ್ಯಳಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವಾರ್ಡಿನ ಜನರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 24 ಗಂಟೆ ಮೀರಿದರೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹಾಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು SP ಅವರಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಕಳಿಕಳಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಜೀವದ ಅಪಘಾತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೂ SP ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ಇರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. वहीं बीजापुर SP ने इस पर बयान जारी करते हुए बताया कि कत्ल की वजह आपसी रंजिश है, सियासत से इसका कुछ ताल्लुक नहीं है. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂತಹ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತನಿಖೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. वाज़ह है कि मकतूल हैदर अली नदाफ रौडी शीटर था और असेंबली इंतखाबात के चलते MIM से टिकट का मुतालबा कर रहा था. राघो हनीगिरी नामी शख्स ने मीडिया के जरिए एक ऑडियो रिलीज किया है जिसमें मकतूल हैदर अली नदाफ ने MIM के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी से फोन पर बात की है और इस दौरान कई सारी बातें इस ऑडियो में सामने आई हैं. ಕೊಲೆಯಾದ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ರು ಏನೋ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಜಯಪುರದ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪತಿ ಕೊಲೆ ಆಗ್ಯದ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮತದಿಂದ ಲೀಡ್ದಿಂದ ಆರಿಸ್ತಂದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿದ್ರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವೆ ನಾವು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಚುನಾಯಿತರಾಗ್ಯಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗೆ ನಗರ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಕೊಲೆಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ AIMIMನ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ. ಇದು ಬಹಳ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು AIMIM ಪಕ್ಷದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ AIM ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕೊಲೆಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ 2023ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ. ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಅದ. ಅವನ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ ತನ್ನ ಆಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಕೇಳ್ಯಾನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. AIMನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಸದರು.
ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂಜಿಬಿಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕಳೆದ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅದು ಆಡಿಯೋ ಸಿಕ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಕಡೆ ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡವಲ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠಾಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ನಾಡದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಅಂಜು ಜನ ನಾವಲ್ಲ. हाँ वालेकुम। सर मैं बीजापुर से बात कर रहा हूँ, कर्नाटक से। कौन है आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर नदाफ है साहब। मैं वार्ड नंबर कॉर्पोरेटर 19 का वो कॉर्पोरेटर हूँ, इंडिपेंडेंट। हाँ तो आपके साथ में जो बात करना है साहब, बीजापुर के एमएलए के टिकट के मामले में अल्लाह बख्श बीजापुर साहब आपके पास आए थे साहब 2 दिन पहले। आपसे बी फॉर्म भी लेके गए बीजापुर का। तो बी फॉर्म टिकट तो हमारे को नहीं दिए साहब, लोकल लोगों की बात सुन के। तो हमको बहुत कोशिश करे तो भी हमको बी फॉर्म नहीं दे रहे साहब, इसलिए आपको मजबूर है क्या? आप पार्टी में शामिल ही नहीं है, आप पहले से इंटरेस्ट नहीं दिखाया, अब आखिरी वक्त पे आप आके बोलेंगे 1 दिन पहले मैं लड़ना चाह रहा हूँ, बोल तो सही है साहब। ना तो मैं आपको देखा ना आप मेरे को देखे। सही है। मैं इनसे लतीफ पठान साहब से भी बातचीत हुई कल 2-3 घंटे उनके साथ में। पार्टी में ज्वाइन होने का भी प्लान था, प्रेस मीट करने का भी सब प्लान करे थे हमें। तो अब तक बी फॉर्म नहीं मिला साहब, आपसे बात करना बोल के सोचा साहब। मेरे को नहीं मालूम 1 दिन पहले कैसा फैसला लेंगे आप बोलो, अगर आप मेरी जगह पे रहते कैसा फैसला? साहब हम 1 हफ्ते से फॉलो में है, लेकिन आपसे बात करना का 1 हफ्ते से नहीं है, 1 हफ्ते से नहीं है। आप वो एक कौन है वो आपके काना साहब से उल्ला राब्ते में थे और एक साहब से थे, वो दोनों भी ले लिया उन लोग। तो क्या करेंगे बोलो? तो इसलिए मैं ये भी बताया साहब, अगर आपको पार्टी में ज्वाइन करना है तो हम सब लोग ज्वाइन होने के लिए भी तैयार हैं करके ये भी बात हुई थी साहब कल। आप एक काम करिए, आप कौसर साहब से बात करिए। हाँ सर। ये कौसर साहब हमारे जिम्मेदार है, उन्होंने देख रहे पूरा कर्नाटक का। हाँ सर। उनसे तो बात हमें ये सुनने में आया साहब, यहाँ बीजापुर से तनवीर पीरा बोल के जो है ना, उन्होंने फोन करने के बाद में आपका टिकट यहाँ पे नहीं होगा, इंशाल्लाह माफ करो, नेक्स्ट टाइम हम सब लोग मेहनत करेंगे, आप हमसे आके मिलो तो हम अभी से तैयारी चालू करेंगे। बोले ठीक है, हम अभी से भी तैयार करने के चालू 5 साल के लिए, अब से भी तैयारी करने के चालू करने के लिए तैयार है साहब। हमें फिलहाल अभी 5 साल वेट करो बोले तो भी वेट करने के लिए भी तैयार है। नहीं भाई, आप जिस हजरत का नाम ले रहे, हाँ, उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है हमारा पार्टी के मामलात में। तो मेरे को यही बोले आप कर्नाटक। और ईमानदारी की बात यह है कि हमारी उनसे कोई गुफ्तगू नहीं हुई सर। तो मेरे को लतीफ जो है ना पठान, जो कर्नाटक के हमारे है ना स्टेट आपके पार्टी में, उन्होंने उनका नाम बताया मेरे को अभी। तो तनवीर पीरा जो है ना, उन्होंने फोन लगा के आपका टिकट कैंसिल कर दिया, हमको माफ करो, हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ में इंशाल्लाह। तनवीर पीरा किसको फोन करे? आपका नाम बोले साहब, वो क्या नहीं ना लतीफ पठान बोल के साहब से बात करे उन्होंने। क्या लतीफ पठान क्या बात करे? साहब से बात किए तनवीर पीरा, तो आपका टिकट बीजापुर से नहीं होगा, माफ कर दो बोले। अच्छी बात है साहब बोल के फोन कट करके आपसे कॉन्टैक्ट कर। 1 मिनट ठहरिए। हाँ सर। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ ను హోల్డ్ లో ఉంచారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। ये कोई इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर है, बीजापुर से बात कर रहे हैं और उन्होंने ये बोल रहे हैं कि क्या आपको तनवीर पीरा बात करके बोले, या आप बोले इनको तनवीर पीरा बात करके बोले कैंडिडेट मत दो बोल के? अल्लाह बख्श को बोले साहब ना। कौन बोले? तनवीर पीरा। क्या बोले? वहाँ 20 तारीख तक मैं जो बोलता हूँ तो बी फॉर्म लेकर उनको मालूम पड़ा, हर हालत के अंदर वहाँ बी फॉर्म मैं जब तक बोलता हूँ बिल्कुल किसको भी नहीं देने का। कौन होते भाई? उन्होंने हमारे पार्टी के जिम्मेदार नहीं है ना, और आप कैसा कबूल करते हैं उनको? नहीं मैंने कबूल किया। आप क्यों बोले ये बच्चे क्यों बोले आप? कल रात से जो डेवलपमेंट चल रहा था साहब 2 बजे तक। क्या डेवलपमेंट चल रहा भाई? पार्टी कौन चला रहे? आप चला रहे, अल्लाह बख्श चला रहे, कौन चला रहे? या तनवीर पीरा साहब चला रहे? नहीं, उन्होंने एक सवाल पूछे साहब, बी फॉर्म आए तो रोके कौन बोल के उन्होंने सवाल पूछते थे। मेरे को क्या बोले, ये रोके कौन? देखिए आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे, आप और अल्लाह बख्श। आप जो खुला बोल रहा था तनवीर पीरा साहब को क्या करने का हमारी पार्टी में, उन्होंने तो रहते भी नहीं बीजापुर में जब से तनाजा हुआ उनका वो। हाँ साहब। फिर क्यों ऐसा बोलते आप लोग? आप ना मनमानी क्यों कर रहे भाई? क्यों कर रहे आप लोग? क्या है आप लोगों का एजेंडा, समझ नहीं आ रहा मेरे को। नहीं साहब, उन्होंने ये बात बोलने में मुझे बोलना पड़ा क्या बी फॉर्म उधर लेकर के दिए थे साहब, उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को रुका दिया बोल के मैं बोला उनको। अरे भाई उन्हें कहीं रुका अल्लाह बख्श क्या मुझे उन्होंने जो अल्लाह बख्श जो बोले से बात मैं बोल दिया सबके बोले। अल्लाह बख्श को दिन भर उन्होंने घूमे थे साहब, उन्होंने पार्टी का जो ये बंदी ने कल बी फॉर्म लेने के लिए
इनके कोलार को जाको दिन भर उनके पीछे घूम घूम कर रात को 8 बजे मुझे फोन किया साहब ने। मैं उनको जानता भी नहीं है। मैं रात को 8 बजे फोन करने के बाद में 8 से लेके रात को 2 बजे तक भी मैं सलीम भाई को भी कॉन्फ्रेंस में लेकर उनको बात करवाया, बिड़गी को भी बात करवाया, वो इंडिपेंडेंट जो चुन के आए हैं वो नदाफ बोल के हैं सब, हैदर नदाफ, उनको भी बात करा। मैं आप ही बात कर रहे ना वो बाबू? हाँ साहब, मैं साहब हैदर नदाफ ही बात कर रहा हूँ। हाँ हैदर नदाफ, मैं रात को उनको बात कराया हूँ साहब। इनकी मेरी मुलाकात रात को कल 8 बजे हुई, पहली बार देखा मैं इनको। मैं यहाँ तक बोला कि वो चेहरे का, मैं चेहरा तक नहीं देखा, मुझे कॉन्फ्रेंस पे लो उनका चेहरा देखता हूँ मैं करके बोला। पूछो उनको साहब, मेरी उनकी बात जो हो रही थी, अब भी मैं बोलते टाइम के भी बोला, यहाँ तक पूछे पार्टी। मगर देखिए इनका छोड़िए, मैं ये बोल रहा हूँ कि तनवीर पीरा क्यों मदाखलत कर रहे हैं हमारे पार्टी के मामलात में भाई? पूछो उनको, मैं यही बात बोला हूँ। इनको जो बोला भी हूँ ना, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को उन्होंने रुका है, बी फॉर्म आया करके बोल के हमने शाम तक घुमाए साहब, अभी तक हमने बिल्कुल मिला नहीं है। सुबह से शाम तक घूम रहे, आज अब भी तुमने हमारा नंबर लेको बात करूँ करके बोले हैदर। उन्होंने पूछो साहब उनको, हैदर उनको रात को 2 बजे तक कॉन्टेक्ट में हुआ है हैदर उनके साथ में। क्या इधर मैं बात बोलूँ तो सही है? सही है साहब, लेकिन हमारे को इधर कोई भी बीजापुर में रिस्पांस ही नहीं दे रहा ठीक से, तो उनका चैलेंज है अपोजिशन वाला। सुनो हैदर साहब सुनो मेरी बात। 2 ही मिनट बोला आपको साहब, आप 2 ही मिनट मेरे को आप सुन रहे हैं पूरी बात को सुनो। मैं क्या बोला, वहाँ के हमारे पोस्टमैन सही काम नहीं किए। आप बोले साहब सही पोस्टमैन काम नहीं किए तो बदलने होना क्या? मतलब पोस्टमैन बदलूंगा नहीं है, पूरी पोस्ट ऑफिस बदलेंगे, कहते पोस्ट ऑफिस बदलेंगे। तुम जिम्मेदारी लो और काम करो साहब। इनको कंडीशन किया, अगर हमको बी फॉर्म तुमको देंगे हमें, तो तुम्हारे जितने भी इंडिपेंडेंट कारपोरेटर्स है हमारी एमआईएम में शामिल होंगे क्या? ये बात भी पूछा मैं साहब। आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। सुनो साहब मेरी बात को सुनो। ये बात की बोला बोले तो तुम्हारे वहाँ के 2 लोकल कारपोरेटर जो है वो जाके कांग्रेस में जुड़ रहे हैं बोलने के बाद में मैं क्या बोला, तुम्हें इंडिपेंडेंट चुन को आए वाले हमारी पार्टी में जुड़ो। वो भी 2 जो जाने वाले हैं वो नहीं जाएंगे, हमारी मजबूत होती है। आप सब जने मिलकर डिक्लेयर करो। कितने टाइम में डिक्लेयर करते बोलने के बाद में 2 दिन का टाइमिंग लिए। बोला कल 2 दिन बहुत टाइम होता है, कल का कल कर सकते क्या? बोले कल का कल करने के लिए मेरे को 2 दिन का टाइमिंग होना, बात करने होना, हमारा इसमें टाइम चला गया है करके आप ही बोल दिए। हमको मजबूत करना है हमारे को। पूरी बात को सुनो, मेरी पूरी बात को सुनो, साफ सुन रहे हैं बात को, पूरी मेरी बात को सुनो। मैं बोला तो अगर गलत बोला हूँ तो बीच में बोलो, साहब को क्लियर होने दो। अभी रुक जाइए। अभी पठान साहब आपसे रिक्वेस्ट है, ये कोई भी आपको बोले पार्टी से बाहर का आदमी कोई बोल रहा है समझ दो, आप नहीं सुनना, मेरे को बोल देना आप। हाँ ठीक है साहब, बोल देता हूँ। हमारे पार्टी के मामलात में आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा, अल्लाह बख्श बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे, कोई आदमी आके क्यों हमारे को बोलेगा भाई? हाँ मैं ये क्लियर करने के लिए बोला साहब, इनको भी अल्लाह बख्श को क्लियर कर लिया पहला। तुम बी फॉर्म क्यों नहीं दिए बोलने के बाद में, इनके साथ में बात होने के बाद में बी फॉर्म साहब बीजापुर को देने के लिए जब बोले तो रुके की तुम तो बीजापुर पहुंचते पहुंचते फोन आया इनको। साहब मैं 1-2 मिनट बात कर सकता हूं। ये जो टिकट का जो मामला चल रहा है साहब बीजापुर में, 5 महीने पहले ही वो जो हमारे इन्होंने ना कुछ तो है ना सर, इसमें स्टेट प्रेसिडेंट हमारे उस्मान गनी साहब, तो उनके साथ में 5 महीने पहले बातचीत हुई कांग्रेस वालों की कि अगर टिकट बीजापुर से मेरे को हो गया कांग्रेस से तो एमआईएम का टिकट बीजापुर में मत डालो। ये भी बात रिस्वान मैं खुद मेरे कानों से सुना हूँ साहब। किसको हो गया? तो हमीद मुशर्रफ को, हमीद मुशर्रफ बोले जाके बोले अगर टिकट मेरे को कांग्रेस का हो गया तो बीजापुर से एमआईएम कैंडिडेट मत डालो। तनवीर पीरा और हमीद मुशर्रफ एक ही टीम है साहब, एक ही टीम है वो। किसको बोले? उस्मान गनी जो है ना साहब प्रेसिडेंट आपके इधर स्टेट प्रेसिडेंट, उनसे बोले। हाँ उस्मान गनी साहब का पार्लियामेंट नहीं है, उस्मान गनी साहब कुछ छोड़ दो आपको। तो फिर मैं और एक बात बीच में बोलता हूँ साहब, मैं बीच में बोलता हूँ ठहरो। कल तुमको क्या बोला, साहब की निगरानी में इलेक्शन होने लगा है, इसके 3 लोगों की जिम्मेदारी है। कौसर मोहिद्दीन एमएलए साहब, सुनो पूरी बात को नदाफ साहब। साहब मैं 2 ही बात करता हूँ, साहब भी शायद बिजी रहेंगे, मैं 2 ही बात में खत्म करता हूँ। हमारे बीजापुर में एमआईएम की बहुत जरूरत है। नाम लिए तो एक मिनट ठहरो पठान, आप बोलो क्या बोल रहे हैं आप? साहब बीजापुर में हमारे को एमआईएम की बहुत जरूरत है मुसलमानों को। यहाँ पे जो राजनीति चल रही है मुसलमानों के ऊपर जुल्म के हिसाब से ज्यादा जुल्म हो रहा है यहाँ की राजनीति पे। मुसलमानों का कुछ भी चलने के लिए नहीं है इधर, कुछ भी ना, हम सब लोग जीरो हो गए इधर। इसलिए हम जो भी बोलेंगे फंक्शन करने के लिए तैयार है, हम ज्वाइन होने के लिए भी तैयार है, हर बात से मुसलमान इधर तैयार है एमआईएम के मामले में। जैसा ही साहब आप आके गए कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में बीजापुर में, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो लीडर्स हैं कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, वो लोगों से मुसलमानों की तारीफ चल रही। जब आप आके गए बीजापुर को तब तक कोई मुसलमान को नहीं गिन रहा था इधर बीजापुर में। जैसा ही आप आके गए ना,
अभी इलेक्शन में क्या है, अभी तुम्हारा इरादा? तो अगर आपको टिकट नहीं दिए तो भी आप पार्टी में शामिल होते हैं या फिर आप इंडिपेंडेंट रहते हैं? साहब हम टिकट देंगे तो भी ज्वाइन होने तैयार हैं, नहीं देंगे तो भी ज्वाइन होने तैयार हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि यहाँ पे पार्टी बहुत कमजोर है एमआईएम की, सब लोग उनके गुलाम हो बैठे हैं साहब। आपको मैं सही बात बोल रहा हूँ, आपको बुरा लगा तो परवाह नहीं है। बीजापुर में पूरे डिस्ट्रिक्ट में सब तनवीर पीरा की बात में चलते साहब। इधर आपके वो तनवीर पीरा का बैकग्राउंड आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप बीजापुर में खुद उनके बारे में इंक्वायरी कर लिए। वो सिर्फ नाम के मौलाना है, मगर मुसलमान का नाम उन्हें खुद बदनाम कर रहे हैं साहब बीजापुर से। वो छोड़ दो, उनकी पर्सनल जाती जिंदगी में कोई जाने का नहीं है मेरे दोस्त, उन्होंने जाने उनके अमाल साहब, उनके वजह से पूरी कौम बर्बाद हो रही है साहब इधर बीजापुर में। ठीक है, आप एक मैं बोलता हूँ आपको, आप कौसर साहब को बोलता हूँ आपसे बात करो, बोल के देखेंगे क्या होता है, देखेंगे साहब। मैं कौसर साहब के सामने यहीं पे बैठा हूँ सब, मैं साथ में कौसर साहब भी हैं मेरे साथ में। हाँ ठीक है। तो एक तरफ पुलिस इस कत्ल को आपसी रंजिश बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राघव हन्नीकेरी इसके पीछे सियासी रंजिश बता रहे हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि मजीद तफ्तीश जारी है, कत्ल में मुलव्विस अफराद पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन तमाम के बीच अहम सवाल तनवीर पीरा के नाम को लेकर है कि जिस तरह मकतूल हैदर अली की बीवी निशात ने बयान दिया है और तनवीर पीरा के वहां मौजूद होने की बात कही है, यह कहां तक दुरुस्त है। ऑडियो में कांग्रेस उम्मीदवार हमीद मुशर्रफ का नाम भी लिया गया है। खैर, मामला संगीन है, कई लोगों के अर्द गिर्द इस वक्त शक की सुई घूम रही है। हकीकत क्या है यह तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही पता चलेगी। लेकिन सियासत के नाम पर या सियासी पार्टियों के नाम पर इस हद तक जाना और एक शख्स का कत्ल होना अफसोसनाक है।